ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਾਥ ਮਹਾਤਮ ਕਹਾ। ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਮਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜੋ ਸੰਤਤ ਸਾਰੀ। ਜਹ ਕਹਤੇ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜੁਗਮ ਜੋਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਾਥ ਮਹਾਤਮ ਕਹਾ। ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਮਹਾ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, 2 ਰਹਿਣਾ ਕਿ 8-10 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਬੌਲੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾਈ ਤੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜੋ ਸੰਤਤ ਸਾਰੇ। ਜਹ ਕਹਤੇ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਪੜਪੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਏ ਕਰ ਬੰਧਨ ਭਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੰਗ ਸਭ ਮਿਲੇ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਕਰਵਾਏ ਅਗਾਰੇ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਧਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਵਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਸੁਣਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਭੱਲਣ ਕੇ ਕੁਲ ਬਸੈ ਮਹਾਨੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ
कुल बड़ी संतान गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਚੋਬਾਰੇ ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਬਹੁ ਬਰਖ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਤਹਾਂ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਪਾਨ ਥਾਨ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਚਰਨ ਧੂਰ ਮਸਤਕ ਪਰ ਲਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਬਖਾਣ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਧੂੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਰਤ ਪੁਨੀਤ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਭਏ ਸਥਿਤ ਆਗੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਦੀਪ ਸਤੂਪ ਕੁਸੁਮ ਬਿਸਥਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੂਪ ਕੁਛ ਧਕਾਈ, ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਮੰਗਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਭਇਓ ਵਡਿਆਏ, ਭਏ ਪੀਰ ਬਹੁ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਿੜ ਆਸਣ, ਹੋਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਭਾਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਔਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਹੁ ਮਠਿਆਏ, ਕਰਿਓ ਤਿਹਾਵਲ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਰੇਤ ਸਬਣ ਵਰਤਾਇਓ, ਦੂਸ਼ਣ ਧਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲਾਇਓ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸ਼ਣ ਧਰੇ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਵਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਜੋ ਸੰਤਤ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਨੇ ਨਿਜਗਾਰ ਸੰਗ ਲਗਾਏ, ਕਰ ਆਦਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ੋਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਭਨ ਸੰਗ ਕੀਨੇ, ਸੁਖਮ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਬੇਦੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਪੁੱਛੀ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭਨ ਕੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰਾਏ, ਦਰਬ ਮੰਗਾਏ ਦਿਓ ਸਮਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ
इस करके दिते कि धन गुरु अमरदास महाराज जी के अस्थान पर यह सेवा करते हैं। और इत्थे जरूर बेनती करते हैं, कई इतिहासिक स्थानों पर आप जाने हाँ, गोविंदवाल साहब भी जाइए तो बहुत संगत है जिहड़ी वड्डे दरबार दे विचों नमस्कार करके वापस आ जाती, पर उत्थे छोटे छोटे बड़े स्थान ने इतिहासिक जिथे केवल तो केवल एक ग्रंथ ही रहिंदा है और शायद नाल सेवादार भी नहीं हुंदा। उत्थे सिख संगतां जांदियां ने, बहुत भावें घट जांदियां ने। उत्थों दे ग्रंथी सिंह नूं सेवादारां नूं कोई 100 कोई 200 500 रुपया इस करके दिंदे ने कि मेरे गुरु दे दर दी सेवा करते हैं। भावें वो इतिहासिक स्थान होवे तो देखो, भावें ये 10 रुपए 20 रुपए 50 100 रुपए कथा कीर्तन दे जिहड़े तुसीं दिंदे हो, ये भावना दे नाल हुंदे ने कि मेरे गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की गल कह के सुनाते हैं। और सतगुरु जी ने भी इस भावना के नाल एक तो उन्हों की सेवा की, बस्तर दिते, रुपये पैसे दिते, तो और सानू अगे एक जाच सिखाई भी जिहड़ा गुरु की सेवा करे उनका सत्कार जिन्ना हो सके करो। कर संतुष्ट अधिक सन्माने, नमो ठाणकार पुन तिस थाने। सतगुरु जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ बस्तर भेटा करके रुपये पैसे उत्ते रख के दिते, बड़े प्रसन्न करके। फिर गुरु साहिब जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ अपने कोल नेड़े बिठाया जी। वह रियाए डेरे मह गए, खाण पाण कर पुन सुपतए। उत्थे सोदर दी चौंकी लगी, सोदर साहब का पाठ होया, भोग पाया गया। फिर गुरु साहब जी उठे, डेरे तो बाहर आए। गुरु साहब का सारा परिवार आप अपने टिकाने ते गया, लंगर पानी छकिया। जाम जामनी ते पुण जागे, सगरे सोच करन गुर लागे। ते नित की तरह सतगुरु धन गुरु हर राय साहब जी जाम जामनी पैर रात रहिंदे अमृत वेले फिर जागे ने। इसनूं सोच इशनान जिहड़ी नित की क्रिया सी वो करन लगे। तो इशनान गुरु साहब जी करते हैं, तो किन्ने जिहड़े ने उन्हां वास्ते गागरां हुंदियां ने पानी दियां। आप जी ने पिछे इतिहास सरवण कीता है। इशनान करते हैं तो किन्नियां गागर नाल करते हैं जी। कवि संतोख सिंह जी ने अगे लिखिया भी है, नीर बावले को मंगवाए, 101 गागर भर लियाए। नेम से कि रोज 101 गागर नाल जल नाल इशनान करते सन। वो 101 गागर सिक्खां ने बौली साहब दे विचों लिआंदी है। 300 गुर के निशनान होए, एकांके ठान्यो ध्यान। वो सारिया 101 गागरां का जिहड़ा जल है उन्होंने नाल इशनान किया। फिर एकांत विच सतगुरु जी बैठे ने, अपने निज स्वरूप दे विच ध्यान टिकाया। निज स्वरूप मैं है बिरती टिकाए, आनंद मगन भय गोसाई। ते 2-2.5 घंटे गुरु साहब जी इस तरह नित स्वरूप विच ध्यान टिका के ऐन आनंद दे विच मगन हो के बैठ गए ने। प्रात होत बिगसे दृग कंज, नमो करे मिल सेवक पुंज। जदों दिन का चढ़ा चढ़िया, धन गुरु हरराय साहब जी ने अपने सोहने नेत्र जिहड़े ने कौल दे फुल वांगू वो खोले ने। सेवक सिख आए, उन्होंने सब ने नमस्कार की। 101 पाठ को जामा, सुखम बहुत सेत अभिरामा। हुण गुरु साहब जी ने जामा चोला पाया। तो चोला भी देखो जरूर ध्यान रखो, कवि संतोख सिंह जी ने कई बार लिखा, आप कई बार सुनिया। 101 पाठ, 101 कलियां जिन्हों कहने, 101 कलियां वाला जामा गुरु साहब जी पाते हैं, वो पाया है। पहरण तन मैं है तबहू करियो, सिपर खड़क को आगे धरियो। वो 101 कलियां वाला सूखम बरीक जामा पाया। गुरु साहब जी ने फिर जिहड़ी सिपर ढाल है वो अपने लक दे नाल बन्नी, खड़ग को आगे धरियो। ते जिहड़ी किरपान है वो अपने अगे रख ली। तरकश धन जुत शस्त्र विशाला, धारण करे 4 सब दयाला।
गुरु साहब ने एक तीरां दा पत्था पिछे मोढे नाल कस के बन्निया, एक बड़ी सख्त वड्डी भारी कमान जिहड़ी मोढे ते पाई। गुरु साहब जी सारे शस्त्र बस्त्र पहन के बाहर निकलते सन, बड़े सोहने वो शस्त्र सजाए ने। तह ते पुरदेस शीस नवायो, श्री गुरु अमर नाम सिमरायो। गुरु साहब जी ने उतों फिर बाहर निकल तो पहलों गोविंदवाल साहब नगरी नूं हथ जोड़ के चारे पासे नमस्कार की। धन गुरु अमरदास महाराज जी का सिमरन किया, याद किया, सतगुरु जी तुहाडे वसाई हुई नगरी है, इनू नमस्कार है। अस अरूण होए चले अगारे, धुंद बजो भय धुन भारी। गुरु साहब जी घोड़े ते सवार हो गए, अगे नूं चलण दा जिहड़ा नगारा वो वजा दिता। कश तोपण के सिलख चलाए, चले नकीब बुलत अगवाई। नगारे वजे, कुछ तोपां दी जिवें सलामी दिती जाती, अगे कुछ तोपां भी चलाईयां। जिहड़ा नकीब है वो अगे अगे आवाज़ दिंदा जांदा है। चले तुरंगम भट गमनंते, खुरसो अवणे शब्द उठनते। 2200 सूरबीर घोड़सवार जिहड़े सूरबे ने वो गुरु साहब दे नाल पिछे चले ने, और इन्ने घोड़े जाते होण ते धरती फिर हिलदी है। धरती हिलदी है तो धूड़ जिहड़ी असमानता उड़दी है। उलंघे पंथ सगल तत्काल, पहुँचे जाए खडूर कृपाल। सतगुरु जी गोविंदवाल साहब इक्को ही रात रुके, दिन के चढ़ाव होंदियां नाल उत्थों अगे सवार होए, पैंडा मका के सतगुरु जी खडूर साहब पहुँच गए। ग्राम वहर डेरा करवाए, उतरे सैन थरे समुदाय। धन गुरु अंगद देव महाराज जी के इस स्थान ते खडूर साहब पहुँच के बार बार डेरा करवाया, सारी सैना का उतारा होया। आप उतर कर श्री हर राय गए गुरु अंगद के थाए। उत्थे डेरे ते घोड़ा जिहड़ा सी घोड़े तो उतरे, गुरु साहब जी घोड़ा डेरे विच बन्निया। फिर आप सतगुरु जी नंगे पैरी चल के धन गुरु अंगद देव महाराज जी के स्थान ते गए। दुख सुख ते जे नित निर्बान, मुक्त रूप श्री गुरु भगवान। जेड़े गुरु भगवान सतगुरु जी मुक्ति ते भुगती दे दाते ने, जेड़े दुख ते सुख तो हमेशा ही मुक्त ने, वो नंगे पैरी चल के आप जाते ने। प्रथमे जाए प्रदक्षिणा करे, कर सो लाई धूर सिर धरे। इत्थे भी सतगुरु जी ने जाके धन गुरु अंगद देव महाराज जी के स्थान दे पहलों दे परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया। फिर उत्थों की जिहड़ी धूड़ है वो अपने मत्थे दे उत्ते लाई है। दीपक बृंद कृत के बारे, धूप तुखवाए सुगंधत सारे। इत्थे धूप बत्ती की गई, और गुरु साहब जी इत्थे नाले बैठते हैं, नाले सिख नूं कहंदे ने। सोमनस माला तह लरकाए, पूजन करे सो ग्रेव निवाई। कि भाई सोहनी फुल्लां दी माला लैके आओ। माला लैके आई, इनू कहंदे ने उस स्थान की पूजा। गुरु साहब ने उत्थे पूजा जिन्हों कहा जाता वो पूजा की। सन्मानत गुर अंगत अंश, करी है कारण महाप्रशंस। और इत्थे भी धन गुरु अंगद देव महाराज जी की अंश वंश विचों दातू जी दासू जी उन्हां दे अगे जिहड़ी अंश वंश है उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया। सारिਆਂ ਦੇ गुरु साहब जी ने आओ भगत की, सारिਆਂ ਦਾ सन्मान किया। उठ कर सकरे घरे लगाए, प्रथमे दयो दरब समुदाय। उठ के सारिਆਂ ਨੂੰ गल न लाया। और देखो फिर कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि गुरु साहब जी ने उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ प्रथमे दयो दरब समुदाय, सारिਆਂ ਨੂੰ रुपया पैसा कुछ भेटा किया। इस करके कि गुरु साहब के स्थान की ये सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं। भाव भगत सबके बहुके न, पोषज बहु अर्पण को देन। सतगुरु जी ने सारिਆਂ ਦੀ आओ भगत करदਿਆਂ ਹੋਇਆਂ सारिਆਂ ਨੂੰ कीमती ਜਿਹੜੇ वस्त्र ने वो भी दिते। कुशम
कुशल पोषकार कैसन माना, बहुर मंगायो बहु पकवाना। सतगुरु जी ने सारे उत्थे राजी बाजी पूछी कि भाई सारे ठीक ठाक हो। ये कह के गुरु साहब ने, क्योंकि डेरा बाहर उतारिया सी ते बाहर गुरु साहब जी हुक्म करके आए सन कि उत्थे पकवान तैयार करो, लंगर तैयार करो। गुरु साहब जी ने पकवान मंगवाए। सबन को बैठाए अचावा, परम प्रसन्न होए तिन खावा। गुरु साहब जी ने धन गुरु अंगद देव महाराज के अंश वंश विचों जिहड़े भी सन उन्हां सारिआं नूं लंगर छकाया, पकवान छकाए। सिख संगतां ने छकिया, छक के सारे प्रसन्न होए ने। पुण तिन को सगरो व्यवहार, बूझन के न सर्व प्रकार। लंगर पानी जदों छक लिया, सतगुरु जी ने फिर सारिआं नूं कल्लो कल्ले नूं पुछया भी तेरा कारोबार की है, काम काज ठीक चलदा है। धन गुरु अंगद देव जी उन्हां दे अंश वंश विचों सारिआं नूं पुछदे ने। सगरे संगत जित के आए, सबन देखते भोजन खाई। जिन्नी सिख संगत गुरु साहब दे नाल सी, फिर जिहड़ी सिख संगत खडूर साहब दे विचों भी आई, जिन्हां नूं पता लग्या, उन्हां सारिआं ने लंगर दे विचों आके प्रसादा छकिया। जाम जामने लग सब पोसे, दान मान दे कर संतोषे। जाम जामनी पैर रात तक ये लंगर पानी चलता रहा। तो पैर रात का भाव है कि जो 6 बजे रात को सूरज डुबता है, यदा मतलब तकरीबन 9 बजे तक। और कला लंगर नहीं, गुरु साहब जी ने लोड़वंदां नूं दान मान दे कर संतोषे। जथा जोग जिन्होंने रुपये पैसे की धन की लोड़ सी वो भी दिता। भूमासन पर श्री हर राय, खान पान करके तिस थाए। अज सतगुरु जी लंगर पानी छकिया। भूमासन अज कहते धरती ते अज पलंग दे उत्ते नहीं, साडा बिस्तरा थले लाओ। गुरु साहब जी थले बिस्तरा ला के उत्ते विराजमान हो गए ने। श्री अंगत इस थान आगारे, बैठे सगरे निशा गुजारी। अज धन गुरु अंगद देव महाराज जी के स्थान के सामने गुरु साहब ने बिस्तरा लवाया, पर थले बिस्तरा लवा के सुते नहीं, चौंकड़ा मार के बैठ गए। सारी रात बैठ के गुजारी, तो कल्ले बैठ के आप नहीं गुजारी। कीर्तन भजन अखंड भयो है, बहुत संगत को मेल थियो है। बहुत सारी सिख संगत सी कि जदों लंगर पानी छक के लिया, पैर रात तक लंगर पानी चलिया। फिर सतगुरु कहते हैं अज रात अखंड कीर्तन होए। सारी रात अखंड कीर्तन होया। बहुत सारी सिख संगत जिन्हों आप रहन सबाई कीर्तन भी कहने हैं, ये सारी रात कीर्तन होंदा रहा। एक सिमरन दूजे गुर दर्शन, करे सिख संगत और हर्षण। एक तो गुरु साहब का सिमरन, फिर सतगुरु जी के शब्द का कीर्तन, और तीजे गुरु साहब के दर्शन कर करके सिख संगत अज खडूर साहब की संगत बड़ी ही प्रसन्न ने। रहे जामने जब हूँ जाम, उठे गुरु आनंद के धाम। कीर्तन होंदा रहा, पर जदों पैर रात रह गई, अमृत वेला हो गया, गुरु साहब जी अपने नित की क्रिया उस तरह ही करते हैं। फिर दरबार दे विचों कीर्तन दे विचों उठे ने। उठे गुरु आनंद के धाम, जेड़े आनंद के घर ने आप उठे ने। नित के क्रिया करे शनाने, 101 गागर जल आने। सिख पहलों 101 गागर जल दी भर के लिया के रखते सन। 101 गागर नाल गुरु साहब जी ने नित की क्रिया के मुताबिक इशनान किया है। होत प्रभात चढ़न के त्यारे, सैना कोसरे गुरु उचारे। इशनान करते गुरु साहब जी कहते हैं भाई साडी सैना नूं कह दिओ कि तैयारियां कर लैण, दिन चढ़दे नाल आपे तो अगे चल पैना है। ये हुक्म कर दिता। जेन तुरंगण पावण लागे, भटके सनंद पहर तन पागे। हुण जिहड़े सूरमे ने घोड़ियां दे उत्ते काठियां पाउण लगे, वस्त्र शस्त्र पा के तैयार होने लगे। इतने मह सूर चले आयो, निकट होए कर शीश निवायो।
कहते इन्ने विच एक घोड़सवार सूरमा, क्योंकि सैनिकों वाले शस्त्र बस्त्र पाए ने, वेख के पता लगता कोई सूरमा है। एक सूरमा आया, उन्हें आके सतगुरु के चरणों में अगे होके शीस झुकाया, नमस्कार की। दियो शोकनामा तिन फेर, लिखियो भाऊ ते प्रेम कन्हेर। उन्हें दारा शको का लिखिया होया प्रेम पत्र फिर दिता। एक तो कीरतपुर साहब मिलिया सी पत्र, हुण एक खडूर साहब इतों गुरु साहब जो अगे चलन लगे ने, ये चिट्ठी आके दे दी। तुम दर्शन को चित उमगायो, चाहत रहो ना अवसर पायो। तो इस चिट्ठी में लिखिया सी प्रेम पत्र, जिन्हों कहा जाता सतगुरु जी। आप जी के दर्शनों की बड़ी चाहत है, बड़े लंबे समय तो चाहुंदा साहब के दर्शन करने, पर अवसर ना पायो, समय नहीं मिलिया। हुण सतगुरु जी आया, कृपा करो, मैं आपे आवत हो इस देश, देहो दर्शन प्रेम विशेष। हुण मैं इस देश में पंजाब देश च आया, कृपा करो सतगुरु जी, मेरे ते कृपा करके मैनू दर्शन बख्शो। घाट बिपासा मैं चले आयो, नहीं बिलम मुझको लख पायो। सतगुरु जी मैं आप जी के दर्शनों वास्ते पिछे पिछे ब्यास नदी के घाट से आ गया है, गोविंदवाल साहब पहुँच गया। तो सतगुरु जी इत्थे भी मैनू आउंदियां बहुता समा नहीं लगना। इत उत किते दूर जे हो, कृपा धार दे हो दर्शन मोह। सतगुरु जी इतों गोविंदवाल साहब तो इधर उधर जे किते दूर भी हो, तुसी कृपा करो, कृपा करके मैनू दर्शन बख्शो और आज्ञा बख्शो, हुक्म करो कि मैं कित्थे आवां। लार लग्यो नो रंग को लश्कर, आवत उमड़ियो जो बड़ जल धर। ते नाल दारा शकूल ने यह भी लिख दिता कि औरंगजेब का लश्कर जिहड़ा है, लश्कर है, वो कतारा टोले बन बन के मेरा पीछा करता है। वो बदलों की तरह चढ़ के आता, पता नहीं कदों आ जाए, कदों फड़ के मार मुका देना। इस करके सतगुरु जी शरीर छड्डण तो पहला, मरण तो पहले करी कृपा करो, मैनू अपने दर्शन बख्शो। नाहे ता मैं आवत जित होते, तुम दर्शन ते आनंद उदोते। ते जे सतगुरु जी आप जी ने अगे भी किते जाना है, तो मैं आप उत्थे आ जाना। आप जी जे विराजमान होवो, जिथे विराजमान होवो, मैनू हुक्म करो, मैं उत्थे आके आप जी के दर्शन करा। सुनियो शोकनामा हट चले, गोबिंदवाल पंथ जो भले। जदों इन्ने प्रेम का भरिया पत्थर गुरु साहब ने सुनिया, तो फिर सतगुरु जी खडूर साहब तो अगे नहीं गए। सिखां नूं हुक्म किया सी चाले पाउणे, चाले पा दिते, पर चाले वापस गोविंदवाल साहब वाली पाए कि उत्थे जाके उन्होंने दर्शन दिंदे आ। दारश को जो दूत पठावा, गमनत बूझण हित अलावा। दारा शकोल ने जिहड़ा दूत भेजिया सी, उन्हें गुरु साहब तो दारा शकोल के कोल जान लई पूछा कि दारा शकोल कित्थे है। उन्हें दस्सिया कि सतगुरु जो ब्यास दरिया कोल आया है, गोविंदवाल साहब आया है। केहे थल वलीहत को शोर, आए पहुँचो हमरी ओर। सतगुरु कहते ने ब्यास दरिया के कोल भी कित्थे, कि दारा शकोल ने जिहड़ा डेरा लाया है, वो विलायत नूं छड्ड के कित्थे आके सानूं मिलना है, कित्थे डेरा कीता है। सुन तिसने सब कहो बनाए, तज श्रीनगर तरे उतर आए। दारा शकोल के सेवक ने फिर सारी गल दसी। सतगुरु जी श्रीनगर आके रुकिया सी, पर श्रीनगर नूं छड्ड के वो थल्ले वाले पासे आया। कीरतपुर रावर इस थाने, निस विश्रामत कूच पियाने। सतगुरु जी जिथे आप जी का महान नगर कीरतपुर साहब है, इत्थे आके उन्हें डेरा किया, कुछ इन्हें थकावट दूर की। दारा शकोल कई दिन इत्थे कीरतपुर साहब दे विच डेरा करके रहा है। लग्यो अरूड़न मोहे पठायो, अधिक बेकार मैं इते आयो।
सुन तिस नैं सब कहो बताए। हुण कहंदे जदों सतगुरु जी तुसीं इत्थों चलण लगे अरूरन मोह पठायो। कीरतपुर साहिब तो तुसीं आ गए तो कीरतपुर साहिब तो जदों ये दारा को चलण लग्या उन्हें चिट्ठी दे के मैनू भेजा कि तू छेती नाल जा। वो कीरतपुर साहिब तो चल पिया दारा को। मां पीछे ही आवत सोए तीर बिपासा देर न कोए। वो मेरे पिछे पिछे आ रहा है क्योंकि नाल फौजा ने उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम लगना है। बस ये समझ लो कि तीर बिपासा ब्यास दरिया के कंढे ते वो घाट कोल आ गया होना है, गोविंदवाल साहब पहुँच गया होना है। इत ते कृपा करे तुम चाले उत ते आए मिले सुख नाले। सतगुरु जी इधरों कृपा तुसीं कीती हुण गोविंदवाल साहब नूं चल पे। उधरों वो भी गोविंदवाल साहब पहुँच गया। इम बूझत गमने मग जाए श्री सतगुर पूर्ण हर खाए। इस तरह पुछद्या होया गल्लां बातां करदे होए सतगुरु जी राह ते चलदे ने, बड़े प्रसन्न हो रहे ने। आए पहुँचे गोविंदवाल धुंदव बाजत चमू विशाल। खडूर साहब रात रह के गुरु साहब जी अगले दिन फिर गोविंदवाल साहब आ गए। इत्थे आके फिर नगारे वजे। उतरे कूल बिपासा हेरे जुत विस्तार सैन के डोरे। ब्यास दरिया का किनारा वेख उत्ते उतारा कर लिया। खुले थां ते वड्डा जिहड़ा सेठा ने अपना डेरा लाया। दोहरा सिख सेवक पुर ग्राम टिक लीने सगल बुलाए। अयुध धारे सूर में दास भय समुदाए। और गुरु साहब जी ने गोविंदवाल साहब के सिखां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ बुला लिया। ਜਿਹੜੇ शस्त्र धारी ने वह भी आ जाओ तो भाई ਜਿਹੜੇ शस्त्र धारी नहीं ਜਿਹੜੇ आम जिमीदार सिख ने भाई वह भी अपने घरों कोई डंडा कोई सूटा कोई जिंदे कोल किसी तरह का शस्त्र वो लैके आओ तो कैद नहीं लैके आना है। क्योंकि दारा शकोह ने चिट्ठी दे विच लिख के भेजा है औरंगजेब का लश्कर उनका पीछा कर रहा है तो कोई पता नहीं कदों आ जाए। हुण दारा शो साडी शरण में आया तो जे लश्कर पिछे आ भी जाए तो जिहड़ा साडी शरण में आया साडी शरण में आए हुए तो कोई हमला ना कर सके। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ने यह अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय इत्थों शुरू होना वो आपां कल विचारांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनती प्रवान करनी है जी। हुई है फुल्लां दी खिमा। आओ एक दो बारी रसना के नाल लवाइए हाजिरी फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।